اور دوسرے سال میں جو ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز ہوگا اس میں جو ہے یہ جو یہ حدیث کے علوم کے تعلق سے جو چیزیں ہیں وہ اس میں فنڈامنٹلز آف حدیث کا یونٹ ہے، جس میں سورسز آف حدیث اینڈ چین آف ٹرانسمیشن پہ بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں First presentation we are having Hazrat Maulana Mufti Dr. Muhammadullah Khalil Qasmi Sahab from Darul Uloom Deoband to have a presentation on Hadith studies. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بہت ساری تمہیدی باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ حدیث اسٹڈیز کے موضوع پر ہم نے یہ پریزنٹیشن پیش کرنے کے سلسلے میں دو حصے کیے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہوگا جو 5 سال کا کورس ہے، انٹروڈکشن ٹو 5 ایئر کورس، تھیم کیا ہے کورس کی، اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ اور اس میں جو پہلے سال کا کورس ہے جس کا نام دیا گیا ہے سرٹیفکیٹ ان اسلامک اسٹڈیز CIS، اس کے ہم نے حضرت مولانا سعید انور صاحب اور میں نے 10 لیسنس تیار کیے ہیں، تو اس پر مولانا سعید انور صاحب انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ تو حدیث اسٹڈیز میں جو 5 سالہ کورس ہوگا اس کی آؤٹ لائنس آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ موم کا جو انٹائر کورس ہوگا یہ حدیث اسٹڈیز میں بھی 4 حصوں میں ہوگا، جن کے نام سامنے ہیں سرٹیفکیٹ ان اسلامک اسٹڈیز CIS 1 سال کا، اور ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز DIS 2nd ایئر، اور اسی طرح سے تیسرا سال ہوگا ایڈوانس ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز، اور چوتھا جو سال ہوگا، چوتھا اور 5واں دونوں یہ 2 سال کا کورس ہوگا، اس گریجویشن اسلامک تھیولوجی کے نام سے ہوگا۔ تو اس میں جو ہمارے ٹارگیٹ ہوں گے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ اس میں تو عام طور پر جو گرون اپس ہوں گے، بڑے اڈلٹس ہوں گے، ان کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ انٹلیکچوئلس بھی ہو سکتے ہیں، کنورٹس ہو سکتے ہیں، جن لوگوں کو موقع نہیں ملا تعلیمی زندگی میں کہ وہ اسلام سیکھ سکیں، تو وہ انشاءاللہ اس کا ٹارگیٹ ہوں گے۔ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے یہ سلیبس بنایا گیا ہے۔ اور حدیث اسٹڈیز میں جو میجر پارٹ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ وہ حدیث کا ٹیکسٹ ہوگا، یعنی حدیث کی کتابوں سے، کہ اب اس میں ہم نے کوئی کتاب متعین نہیں رکھی ہے بلکہ موضوعات کا تعین کیا ہے، اور ان موضوعات کے سامنے رکھتے ہوئے اور ہر سال کے اعتبار سے ان احادیث کا سلیکشن کیا گیا ہے، اس لیے کہ دا میجر پارٹ آف دی سلیبس ول انکلوڈ حدیث ٹیکسٹ ریلیٹڈ ٹو کور اسلامک ٹیچنگس دیٹ ول سلیکٹڈ فرام میجر حدیث بکس۔ تو کورس کا جو آبجیکٹو ہے کہ دا مین aim of the course is to facilitate studies of hadith to enable the students to comprehend its significance, its history as well as its working knowledge۔ یعنی حدیث ٹیکسٹ پڑھانے سے پہلے اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ حدیث کا تعارف بھی ان اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کے لیے اس کو ہم نے 4 سال میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ حدیث کی سائنس آف حدیث کا جو انٹروڈکشن کیا جائے ان کے سامنے، اس کو 4 سال پر محیط کیا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ پہلے سال میں رکھی گئی ہیں، اور اسی طرح سے جو ایڈوانس کچھ چیزیں ہیں وہ تیسرے اور چوتھے سال میں بھی رکھی گئی ہیں۔ ہر لیسن کو ہم نے چند یونٹس میں تقسیم کیا ہے، اور ہر یونٹ کا انٹروڈکشن لکھا گیا ہے، اور اس کے آبجیکٹیوز ہیں کہ ہم اس سے طلبہ کو کیا دینا چاہتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ کیا حاصل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اویلیبل ریسورسز کے
उनवान से एक है इसमें कि हम उस मौजू पर जो लोग फर्दर स्टडी करना चाहते हों वो क्या क्या कौन कौन सी किताबें उस मौजू पर देख सकते हैं। उर्दू में भी है, अरबी में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। जो मौजूद हैं उनको हमने कोशिश की है देने की। और आखिर में लेसन के हिसाब से फिर एक्सरसाइजेज हैं जिनमें कंप्रहेंशन है और दूसरी तरह से उसको सब कोर्स लेसन को रिवाइज़ करने की कोशिश की गई। तो हम आते हैं इसमें पहला जो सर्टिफिकेट इस्लामिक स्टडीज़ है इस पर इंशाल्लाह तफसील से मौलाना सैयद अनवर साहब बात करेंगे, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और अगले फिर इसमें जो है पहले यूनिट में हमने इंट्रोडक्शन टू हदीस रखा है जिसमें हदीस की डेफिनेशन, ओरिजिन वगैरह पे बहस होगी। अथॉरिटी हदीस पर हल्की फुल्की बहसें हैं। फिर डेवलपमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ हदीस है और फिर मेजर हदीस कलेक्शंस हैं जिनका तारुफ पेश किया गया है। और दूसरे साल में जो डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज़ होगा उसमें जो है ये जो तमीज़ हदीस के उलूम के ताल्लुक़ से जो चीज़ें हैं वो उसमें फंडामेंटल्स ऑफ हदीस का यूनिट है जिसमें सोर्सेज ऑफ हदीस एंड चेन ऑफ ट्रांसमिशन पे भी कुछ गुफ्तगू होगी। हदीस की टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह जो इस्तेमाल होती हैं उन पर भी लेसन होगा। ऐसे ही हदीस की जो कुछ अक़साम हैं कि कुदसी वगैरह क्या है और तो उस पर भी बहस है। ऐसे ही अर्ली कलेक्शन ऑफ हदीस, ख़ास तौर से ये एक मौजू आता है कि हदीस की तदवीन के ताल्लुक़ से और उसमें गलतफ़हमियाँ पैदा की जाती हैं, तो उसके ताल्लुक़ से भी एक लेसन रखा गया है कि हदीस की तदवीन यानी जो आम तदवीन मालूम है कि इमाम बुखारी या दूसरी कुतुब जो मौजूद हैं वो लिखी गई, उससे पहले भी हदीस की तदवीन थी और किन शक्लों में थी वो उसके बारे में भी लिखा गया है। और इसके बाद की फिगर्स इन हदीस ट्रांसमिशन, तो इसमें हज़रात सहाबा किराम से लेकर के दूसरे हज़रात ने जो खिदमत अंजाम दी हदीस की के ताल्लुक़ से उनके ताल्लुक़ से गुफ्तगू है। और दूसरी यूनिट है वेरिफिकेशन ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हदीस। इसमें भी हदीस की जो है फिर का जब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था तो उसमें फिर जो और दुश्वारियाँ पेश आई मुहद्दिसीन किराम को कि उसकी वजह से फिर उसके इस्तिनाद का मामला पेश आया रावियों के ताल्लुक़ से या कहीं गलत रिवायात जो उसमें मौजू और दूसरी चीज़ें आने लगी तो उसको हज़रात ने कैसे दूर किया और फिर वो इल्म पर कैसे पैदा हुआ उसके बारे में भी गुफ्तगू की जाएगी इंशाल्लाह। तो उसमें डिफरेंसेस उसमें अस्माउर रिजाल वगैरह के ताल्लुक़ से हदीस की क्लासिफिकेशन किस अंदाज से फिर हुई उस पर गुफ्तगू की गई। फिर उसके बाद तीसरी यूनिट से अगली जो 4-5 यूनिट्स होंगी फिर उसमें भी वही बात है कि हदीस का टेक्स्ट जो है इंशाल्लाह सहाह सित्ता से और दूसरी किताबों से इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। और एडवांस डिप्लोमा में भी इसी तरह से हदीस का इंट्रोडक्शन पेश करने की कोशिश की गई है। इसमें कोशिश ये की जाएगी कि ज़बान को और कंटेंट को दोनों को जो है इंशाल्लाह उसी के मेयार से जिस मेयार का कोर्स होगा उस हिसाब से उसको बढ़ाएंगे। पहले वाले में सिंपल मालूमात होंगी, अगले वाले में उससे ज़्यादा होगी, अगले वाले में इंशाल्लाह उससे ज़्यादा होंगी। और इस तरह से कुछ टॉपिक्स कुछ मौज़ूआत भी बदलेंगे। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है अभी कई चीज़ों का इसमें इजाफा किया गया है और हदीस मौजू वगैरह हदीस पर जो है भी गुफ्तगू के लिए उसके लिए भी असबाब शामिल किए गए हैं। और इसी तरह से अब आखिरी जो साल है जिसमें ग्रेजुएशन इस्लामिक थियोलॉजी है इसमें जो है इसमें साइंस ऑफ हदीस ऑथेंटिकेशन पर एक यूनिट है और दूसरा यूनिट ख़ास तौर से हदीस और फ़िक़्ह पर है, जो कि अब हदीस इसमें ज़्यादा पढ़ाई जाएगी। और इसमें पहले वाले जो सालों में हदीस पर जो फोकस किया गया था उसमें ज़्यादातर जो रिक़ाक़ की हदीस हैं या अखलाक़ की हदीस हैं या फिर इबादत वगैरह के ताल्लुक़ से हदीस हैं उस पर ज़्यादा फोकस था। और इसमें दूसरे वाले में जो और फ़िक़ही मसाइल हैं इंशाल्लाह वो भी आएंगे, तो उस हिसाब से हदीस का और फ़िक़्ह का क्या जो है जोड़ है उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू की रोल ऑफ हदीस इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और हदीस एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ और हदीस इज्तिहाद इस तरह से और ये डिफरेंसेस बिटवीन कुरान हदीस इन बिब्लिकल कंटेक्स्ट। तो तीसरी यूनिट इसी तरह से फेमस कमेंट्रीज ऑफ हदीस। सब चूँकि हदीस इस साल तलबा जो है ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा चीज़ें बताई जाएगी तो सहाह सित्ता और दीगर किताबों के तारुफ तो पहले हो चुका है। अब इन किताबों की जो शुरुआत लिखी गई हैं और जो मशहूर हैं उनका तारुफ पेश किया जाएगा और फिर अगली यूनिट्स में इसी तरह से हदीस का टेक्स्ट जिस तरह से पेश किया जाता रहा है हर एक सब्जेक्ट में वो पेश किया जाएगा। तो ये 5 साल के कोर्स का ये खुलासा होगा कि इंशाल्लाह इसके इब्तदाई तौर पर हदीस की तमहीदी चीज़ें और उलूम हदीस की चीज़ें पेश की जाएंगी और
بعد میں حدیث کا ٹیکسٹ پڑھایا جائے گا، لیکن ٹیکسٹ کے لیے کوئی کتاب متعین نہیں ہے، بلکہ جو ہے مختلف کتابوں سے کوشش یہ کی جائے گی کہ بخاری شریف ستہ تمام اس میں سے سب کتابوں سے ابواب، سارے ابواب سے حدیثیں آ جائیں اور ان کو جو ہے ان کا ایکسپلینیشن، اس کا ٹرانسلیشن اور اس سے متعلقہ جو ابحاث ہیں وہ پیش کی جائے مختصر انداز میں انشاءاللہ۔